ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਜਰਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਖਲਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਾ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ ਬੜੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਰੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਫੜ ਲਓ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ, ਕਿਸਾਨ ਪੀਸਫੁਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ। ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ? ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪੀਸਫੁਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये तो बताने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि 1 साल से है जो अपने किसान मजदूर है, सभी लोग हैं, व्यापारी दुकानदार है, 1 साल से बैठे हुए हैं, जो आंदोलन पे बैठे हुए हैं। और उनकी समस्या जो है, जो 3 बिल लेके आई है सरकार, जो कानून लेके आई है, उसके विरोध में है। और 3 लगातार 12 महीनों से सरकार वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जो बिल लाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वो लोगों के फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन यदि लोगों को ये बिल या कानून है वो मंजूर नहीं है तो सरकार को वापस ले लेनी चाहिए। लेकिन सरकार जो अपने अहंकार पर बैठी हुई है, ये लोगों की बात मानने को तैयार नहीं है। और इसी के आधार पे जो सरकार है, इन्होंने अब तक कभी इन किसानों मजदूरों को आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कई नाम दिए और इस आंदोलन को ख़राब करने के लिए, बदनाम करने के लिए। और जब ये कुछ नहीं कर सके तो बाद में अभी बौखलाए हुए हैं। इस बौखलाहट में इन्होंने जो लखीमपुर खीरी में जो इतनी बड़ी घटना कर दी, और शरेआम उस वीडियो जो आपने देखी होगी और सभी लोगों ने देखी है, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जो शांतिप्रिय तरीके से लोग आप पीछे जा रहे थे, उनके पीछे से लाकर जो गाड़ियों ऊपर चढ़ाकर दरड़ते हुए, और 4 किसानों को शहीद किया, और एक पत्रकार उसमें भी है शहीद हुआ है। 5 हमारे साथी जो शहीद हुए हैं, और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1-2 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लेकिन उस कांड से होने से पहले जो वहाँ का कैबिनेट राजगृह मंत्री है, उसका एक बयान आपने देखा होगा। उसमें वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो लोग किसान बैठे हुए हैं, अपने धरने पे बैठे हुए हैं, मैं इनको सीधा करना जानता हूँ, 2 मिनट में इनको सीधा कर दूंगा। शरेआम चेतावनी दी, और उसके 2 दिन बाद ये इतनी बड़ी घटना जो हो गई, और अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। संयुक्त मोर्चा की ओर से जो कॉल दी गई थी आज के दिन के लिए, इसी के संबंध में कॉल दी गई थी कि उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उसका जो मंत्री पद है उससे वो इस्तीफा दे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो आज का जो आपका आंदोलन है, हाँ जी, ये इसके बारे में बताइए। ये आज के उस लंबे आंदोलन की वो कड़ी है जो पिछले लमसम 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर लड़ा जा रहा है।
और आज की इस आंदोलन का महत्व ये है और इसका मकसद ये है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये कृषि कानून है जो कृषियों के लिए, किसानों के लिए, मेहनत कशों के लिए उनके विरोध में लाया गया बिल है। उसका विरोध हो रहा है लगातार, आप सभी इससे जुड़े हुए हैं लंबे समय से। आज का मुख्य मकसद, इसका जो पर्पज है, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई वो बहुत ही दर्दनाक है और इस फासिस्ट शक्तियों का किया गया वार हमला है, जो किसानों पर सीधा हमला हुआ है, उनको गाड़ियों से कुचला गया है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे ने ये आह्वान किया था कि या तो गृह राज्य मंत्री, जिसका लड़का इसमें शामिल है, और गृह राज्य मंत्री भी इसमें सीधा सीधा इन्वॉल्व है। ये किसान संघर्ष समिति ने समझा है, किसान संयुक्त मोर्चे ने बखूबी इसको समझा है। और गृह राज्य मंत्री के ओहदे पर रहते हुए, अजय मिश्रा के उस ओहदे पर रहते हुए हम ये महसूस करते हैं कि ये न्याय नहीं हो सकता। उसका लड़का जो सीधा सीधा इसका दोषी है, उसको सही सज़ा नहीं मिल सकती। इसलिए आज का हमारा ये जो आंदोलन है उसको गिरफ्तार करने के लिए है, उसको रिजाइन करवाने के लिए है, ताकि ये जो लखीमपुर खीरी कांड हुआ है इसकी सही और निरपेक्ष जांच की जा सके। इसी पर्पज से आज का ये जो पूरे देश की रेलों पर इसी तरह लोग बैठे हुए हैं और उसी संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर है। और लेकिन इसका मुख्य जो है वो, इसका मतलब यही है आज के आंदोलन का कि वो अजय मिश्रा गिरफ्तार हो, अपने गृह राज्य मंत्रालय से रिजाइन करे। ये पिछले लगातार 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 700-800 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੱਠੀ ਤੇ ਧਰਿਆ ਤੇ ਉਬਲਣਾ ਹੀ ਉਬਲਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੋਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਰੋਸ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 20,000 ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਬਸਿਡੀ। ਵਾਹ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਔਰ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 600 ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਠ ਮਾਰੋ ਚੱਕ ਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। आज किसान संगठन और किसान नेताओं के द्वारा रेल रोको आंदोलन का जो आह्वान किया गया है, जिसका समय 10 बजे से 4 बजे तक का रखा गया है, इस आंदोलन में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर ली गई है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना को रोका जा सके। इसके अलावा सभी किसान साथियों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इस प्रदर्शन को शांतिपूर्वक ढंग से करें, किसी प्रकार का हंगामा ना करें। प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें, यही मैं सबसे अपील करना चाहूँगा। इसके बीच में जो गाड़ी का समय है उसके बारे में क्या है? 10 बजे से 4 बजे के बीच में गाड़ी का एक ही ट्रेन का समय है, वो शायद 3 सवा 3 बजे का है। यदि पीछे से गाड़ी आती है तो उसको देखा जाएगा। अब ये रेल रोको आंदोलन हर जगह पर है, देखो पीछे से गाड़ी यहाँ पे आ भी पाएगी या नहीं आ पाएगी, इसके बारे में समय ही बताएगा इसमें।